So hi guys, this is Sandeep Khariwal and welcome to my YouTube channel. If you are interested to get admission in Delhi University and you want to pursue a BVOC software development course from Delhi University, then this video is for you guys. So if you are not aware, then I am telling you that DU offers the courses to students who have cleared the entrance exam that is known as CUT exam. So you all guys have a need to clear the CUT exam before getting admission in DU. So in today's video, I will tell you how you can apply for the CUT exam. So now the registration is open. So I will tell you and guide you how you can apply for the CUT exam and get admission in Delhi University. So before wasting time, let's get started. So first you have to come on your browser and here you have to search for DU, and here is you can see the official website of Delhi University. Visit this website. So now here you can see that the official website web page is open of Delhi University, and scroll little bit down and here you can see the section of study at DU admission 2024 to 25. Okay, so here you have to click on this link. So now here you can check out the admission web page is open, and here you can see the link of admission. And so now you have to click at this link. Now another web page is open for the admission section, and so what you have to do, you can check that register for CUT UG, that is undergraduate, for undergraduate. Okay, now you have to click on this link, and listen guys, I will give this link in the description box, or I can pin it in comment section, so you guys can check in comment section or in the description box. So I will provide this link in the comment section or description box. So guys, you can check there. Okay, so now I have to click on this link for registration. So here you can see this is the registration web page for CUT entrance exam. So if you have already registered and you want to check it out your application status, then you can directly log in with your application number. Otherwise, if you are a new candidate then or a new student who is applying for the first time for CUT exam, then you have to click on this new candidate registered here. So अगर आपने नहीं कर रखा है रजिस्टर तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे. So here given some instructions for the new user. So you can see जो पहले देखिए 3 सब्जेक्ट्स, जो हमारे ना 3 मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं इसके अंदर. जो हम एग्जाम देंगे उसके अंदर 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, जिसकी फीस कैटेगरी वाइज हमें दे रखी है. जर्नल की 1000 है और ओबीसी की ये 900, SC ST की 800 है. अगर आप ना 3 सब्जेक्ट के अलावा भी CUT में सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स, तो इनकी हर सब्जेक्ट की अलग से फीस दे रखी है. तो अगर आप चाहो तो अपना अलग से सब्जेक्ट कोई चूज करके डाल सकते हो CUT एग्जाम के लिए. अभी ना क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका रीजन क्या है, हमें बेनिफिट क्या है अगर हम अलग से कोई सब्जेक्ट डालेंगे. तो देखो कि अगर CUT एग्जाम दोगे आप, अगर देखो कि अगर आपके पास ना PCM थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तो 3 सब्जेक्ट्स तो रहेंगे मेन. ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक कंप्यूटर साइंस है जिसके अंदर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, और अगर मैं वो भी ऐड करूंगा तो मेरे मार्क्स क्या होंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे. तो अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो तुम्हारे चांसेस भी ज्यादा. अभी देखो एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे पहला होता है हमारा रजिस्ट्रेशन की. अगर आपने न्यू रजिस्टर्ड हो, तो मतलब न्यू कैंडिडेट हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले. उसकी ये प्रोसेस दे रखी है और उसके बाद में दे रखी है. अगर आपने पहले एप्लीकेशन रजिस्टर कर रखा है तो उसके बाद में आप ना डायरेक्ट अपना स्टेटस चेक कर सकते हो एप्लीकेशन का यहाँ से. और ये कुछ प्री रिक्विजिट है जो कि हमें फॉलो करने हैं उसके दौरान, जो एप्लीकेशन हम फिल करेंगे ना फॉर्म, उसके दौरान. तो उसमें क्या करना अपने को, हमारे पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जेपीजी फॉर्म में, और एक आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए आपका, उसके भी एक फोटो आपके पास रखनी है. उनकी साइज दे रखी है किस कहाँ से किस रेंज तक की केबी में होने चाहिए. और आपके पास आपकी स्कैन जो आपके पास फोटो होगी या फिर साइन होगे वो स्कैन होने चाहिए, और उनको स्कैन करवा लेना है, स्कैन करवा के फोटो कॉपी रखनी है.
और ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कुछ, जैसे आधार कार्ड हुआ, 10th और 12th की मार्कशीट हुई, उनका रिजल्ट हुआ, उनकी उन सर्टिफिकेट्स की फोटो रखनी है अपने को स्कैन करवा के, और उसका साइज दे रखा 50 KB to 30 KB का। और उसके बाद में हमें पेमेंट करनी है, इन 3 सेक्शन के बाद हमें पेमेंट करनी है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें पासवर्ड की, कि हमें एक ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कि हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, उसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, और ऐसा पासवर्ड लगाना है जो हमें रिमेम्बर रहे। जैसे कि मेरा नाम संदीप है, तो एक इजी पासवर्ड बताता हूँ कि कैसे लगाना है, जिसके अंदर कंप्लीटली फॉलो हो जाएंगे। इसमें कैरेक्टर हमें यूज करना है 8 to 13 कैरेक्टर। जैसे मेरा नाम संदीप है, तो मैं पासवर्ड क्या लगा सकता हूँ जो मेरे को रिमेम्बर रहे। संदीप का एस कैपिटल कर दूंगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में, एंड @ का यूज करूंगा जो स्पेशल कैरेक्टर है, एंड 1 2 3। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे अपने नाम से, ताकि हमें रिमेम्बर रहे कभी भी हम अगर लॉगिन करें तो फिर से। ऐसे हमें पासवर्ड बनाने हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पे क्लिक किया, आई हैव डाउनलोड, एंड क्लिक टू प्रोसीड। और यहाँ पे अभी दे रखी है हमें इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड का सिलेक्ट करके और आधार नंबर डाल के और जनरेट OTP, यहाँ पे आपका आधार वेरीफाई होगा, और आधार कार्ड को वेरीफाई करके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे, और आपको रजिस्टर करना होगा। और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 25 मार्च है। तो तब तक के लिए आप क्या करो कि इसमें लॉगिन करो, रजिस्टर कर दो अपना एग्जाम, जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी कर दो, ताकि डेट ना निकले। तो फिर यही थी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। मिलता हूँ फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल रिप्लाई श्योर फॉर यू। ओके, सो गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।